Hello friends, I'm Payal here and welcome to our channel Banking Life Payal. Guys, today I will be sharing my personal strategy that I followed during IBPS PO examination. I will be sharing my personal strategy for the English section for pre as well as mains. So let's start the video. So first of all, let's start with the strategy for the for English pre section. Alright, so first of all, what I did when I started my preparation in March 2018, I was not well aware with the syllabus first. So you should first aware yourself with the syllabus of the English, the complete syllabus for the IBPS PO examination for pre as well as mains. After that, what you should do, you should start reading newspaper. Alright, if your English is good or even not good, in both cases you should read the newspaper, and the newspaper you should follow, it's The Hindu, or there can be other also, but The Hindu would be better, and you do not need to read the whole The Hindu newspaper. What I used to do, I read the Hindu editorial and only for 30 minutes. I didn't read it more than 30 minutes because 30 minutes are enough if you read it consistently, I mean on daily basis. So I in the starting I didn't follow this strategy. That's why the marks which I got were in English were like 16 or 17, not more than that. I never got more than 17 marks in English. But after the strategy that I followed, that I'm sharing with you guys, I get like 30 marks in SBI PO Pre during 2019 examination. SBI PO Pre 2019, I got 30 out of 30 marks. So, and in 2018 Canara Bank PO also I got 45 out of 50 marks. And in the IBPS you can see my scorecard also, the marks which I have got. So after following this strategy, my score in English improves really a lot. So I want that this my strategy helps you guys also. That's why I'm sharing it with you. So let's start it. What I did to improve my score, I followed the I started reading the Hindu editorial newspaper on daily basis for at least 30 minutes. That is for improving my reading, as well as in addition to improving your reading speed for the RC that comes in the English section, it also improves your overall question attempting speed. I mean, you can attempt if you're attempting like 40 questions out of 100 right now, after reading newspapers, when your reading speed improves, your question attempting speeds will also improve. You will be attempting like 70 questions. I mean, you will be able to attempt more. Alright, so it will help you in overall exam also, in addition to the English. So that was for reading and improving speed, and basic understanding also for the reading comprehension. What I used to do in addition to this, because only reading is not enough, I followed the other 247 classes for grammar. I made notes in detail, but I realized after 2-3 months that these are really not helping and these are wasting my time. So instead of learning the rules in grammar rules in detail, what I did, I read only the basic rules, I mean, which are useful to me, and in summary you can say, or sometimes I just skip them. But I stick to my reading schedule. And what I did in addition to reading, and in reading grammar rules in basic, not in detail, okay, I gave mock test. Oliveboard mock test helped me a lot. Oliveboard sectional mock test for English specifically, because their level of difficulty was good. And one more very important thing was negative marking. Earlier I used to do a lot of negative marking. I mean, I used to do a lot of guesswork, and that's not good in English. It really decrease your accuracy. Accuracy matters a lot in English. Right now, if you are attempting like 25 to 30 questions and getting only 19 marks, so instead of doing that,
attempt only those questions in which you are 100% sure. So what I did to improve my score, I changed my strategy like this. Instead of attempting 30 questions and getting 19 marks only, I attempt 20 to 22 questions in which I was like 100% sure. Then my score also improves, like I got like 20 or 18, but like slowly and gradually my number of attempts got increased after giving mock test and analyzing them, reading newspaper on daily basis and reading the grammar rules, okay, and analyzing the mock test in a better way, so that I do not repeat my mistakes. Okay, I remember what mistakes I made in the earlier mock test, so that I do not make those mistakes again and again. I do not learn vocab. Okay, in starting I did that, but later on I found that these were not that much useful, and it's not always easy to remember these, like I mean cramming word basically. And so I just stick to reading and not I will come up with that in detail in my other videos also. Guys, there is one more important thing that I forgot to tell you. That is for 1 month in the starting, when I started my preparation in March 2018. What I did, I read Norman Lewis like for 1 month around in detail. Okay, and it didn't help me, like not even 1%. So don't repeat my mistake. Don't go for Norman Lewis. Just read the newspaper. Okay. How to read newspapers and how to attempt mock test, how to analyze the mock test in a better way, okay, to improve your score. So right now I am telling you in a summary my strategy. Okay, in a summary I am telling you my strategy, overall strategy. So that was reading, grammar, basic grammar, and then mock test, analyzing them. And what you should do, don't do negative marking, don't do guesswork, attempt only those questions in which you are 100% sure. So I did these things for English PO pre also and for mains also. So my strategy was similar for pre also and for mains. There is not much difference in English PO pre examination and PO mains examination. Only the difficulty level arises, I mean it rises. So for that you can attempt the PO mains mock of Olive board. And one more thing what I did, I followed a specific strategy of attempting questions in a sequence, in a particular sequence. I had a strategy that I need to do these questions first and these questions at the end, and I don't change my strategy when I appear for the examination. Like when I'm giving the mock at home, I am implementing that strategy, and I'm using the same strategy in the examination center also. Do not change your strategy in the examination center. That's like doing an experiment or taking a risk. Okay, don't change it at the end. So that's an important point. And also I have shared my question selection strategy for English PO pre-examination. I will share the link of the video in the description. Alright. Also I will share the question selection strategy for the English PO mains examination. I will show you how I attempt a particular English PO mains examination from using a Olive board mock. The same way I have used Olive board mock in explaining you how I attempt questions in the English PO pre-examination. Okay, so I will share the link of both the videos in the description box. You can see from there. So that was all. Basically, I don't think I have missed anything. And if there is anything that I have missed, I will come up with the videos in detail for English language, English descriptive, and how to read newspaper, everything in detail. Okay, so that was all for today. That was my strategy which I followed to get like 90% marks and a good accuracy. Like I got around 99.9% accuracy in English in IBPS PO mains examination. And you can see my scorecard from the videos given in the link in description box. So that was all for today, and have a nice day. I hope these strategies will also help you the way these help me, and you will not repeat my mistakes that I made in the early, I mean in the beginning when I started my preparation. All right, so that your time don't get wasted, and your result, I mean
your success doesn't get delayed. So that was all for today and we'll meet in the next video. Have a nice day. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ फाइल में। आज की जो वीडियो है वो मेरी इंग्लिश पीओ स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, जो मैंने यूज़ करी थी इंग्लिश के लिए, IBPS पीओ एग्जामिनेशन के लिए, SBI पीओ में एग्जामिनेशन के लिए और बेसिकली हर बैंक एग्जामिनेशन के लिए जिसमें इंग्लिश सेक्शन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और पहले मैं पीओ प्री के बारे में बताऊंगी और फिर पीओ मेंस के बारे में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब मैंने मार्च 2018 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उस दौरान मेरे 16 या 17 मार्क्स आते थे और कुछ मेरी ऐसी गलतियां थी जो मैंने की जिसकी वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता था। बट जब मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, जब मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि हाँ मैं ये गलतियां कर रही हूँ, उसके बाद क्या हुआ, मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी आए हैं। और इन SBI पीओ प्री 2019 और कैनरा पीओ मेंस में मेरे मार्क्स आए 45 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश। ओके, उस टाइम मैं जीके की वजह से रह गई थी, जो मैंने आपको जीके सेक्शन में भी बताया था कि मेरी जीके में मैंने जो गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था, जो मैंने बाद में इम्प्रूव करी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, IBPS क्लियर हुआ, बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये तो था कि स्टार्टिंग में मैंने जो मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ और फिर मैंने स्ट्रेटजी चेंज करी जिसकी वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव होने लगा। तो वो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिलने लगे, लाइक 30 आउट ऑफ 30 या 90%, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरी जनरली जो स्ट्रेटजी रही प्री और मेंस के लिए वो सेम ही थी ऑलमोस्ट, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो सेम ही होता है, बस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है कि पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाता है मेंस में और प्री में थोड़ा इजी आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस मेंस में थोड़े एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, बट जो बेस रहता है कंसेप्ट क्लैरिटी और जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। सिर्फ क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी आपकी डिफरेंट हो जाती है। पीओ इंग्लिश पीओ में मैंने प्री में एग्ज़ाम में मैं कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती हूँ, मेरा क्या सीक्वेंस रहता है, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वो मतलब हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशंस पे, अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। गाइस इंग्लिश के लिए मैं गलती क्या करती थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, सबसे बड़ी गलती। और दूसरा नेगेटिव मार्किंग करती थी, गेस मार्किंग करती थी। मुझे होता था कि 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, चाहे वो 100% मुझे उसमें श्योरिटी हो या ना हो, ठीक है। एक तो ये गलती, रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं करना, दूसरी नेगेटिव मार्किंग करना, गेस वर्क करना, तीसरी मैंने क्या किया, ग्रामर रूल्स मैं डिटेल में पढ़ती थी, ठीक है, जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको PhD नहीं करनी है, ठीक है, ग्रामर में। चौथी गलती वकैब डेली मतलब वर्ड्स याद करने। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं, इसे मैं गलती नहीं कहूँगी, बट मुझे इससे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई, एक और गलती मैंने की जो मैं बताना भूल गई। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस दौरान मैंने नॉर्मन लुइस की बुक को रीड करना स्टार्ट कर दिया। अराउंड एक महीने के लिए मैंने रीड किया डिटेल में, अच्छे से भी, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। और वकैब के लिए, और उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो, 1% भी फ़ायदा नहीं हो मुझे उस चीज़ का। और उसके बजाय आप क्या कीजिए, आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए, वो बेटर है। और मैं वीडियो भी बनाऊँगी उसके रिगार्डिंग कि आपको हर चीज़ डिटेल में कैसे करनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी की आपको बता दी, प्री की और मेंस की मैंने लिंक डाल दिया वीडियो का, उसी तरह मैं आपको ये भी बता दूंगी कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, और उससे आपकी वकैब भी इम्प्रूव हो जाएगी, रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी, और क्वेश्चन अटैम्प्ट्स की मतलब वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी। जितने टाइम में मतलब मान लीजिए 10 मिनट में आप पहले 5 क्वेश्चन करते थे, आप 8 क्वेश्चन करने लगेंगे, तो आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, इंग्लिश से पैसेज इम्प्रूव होगा, अंडरस्टैंडिंग, तो आपके ओवरऑल एग्जाम की स्पीड है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये होता है जनरली। और अगर आप तो आपको क्या करना है, जो मेरी स्ट्रेटजी है एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपको क्या करना है, गलतियां मैंने आपको बता दी क्या है, वो आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो आपका टाइम खराब ना हो, आप रिग्रेट ना करें मेरी तरह, आपका सिलेक्शन डिले ना हो और आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, ठीक है। और स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कीजिए ऑनलाइन। ऐप मैंने बता रखा है आपको, हिंदू ऐप डाउनलोड करना है और हिंदू एडिटोरियल पोर्शन आपको रीड करना है 30 मिनट डेली, 30 मिनट आपको रीड करना है, ठीक है।
उस कैसे रीड करना है मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है ग्रामर रूल्स। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती थी, मैं अडर 247 की क्लासेस देखती थी, नोट्स बना रही हूँ, उसको रीड कर रही हूँ, लाइक मतलब बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक से कुछ रूल है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ग्रामर रूल्स की क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूँगी, वो आप देख सकते हैं। और जिसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि जितने ज़रूरी हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। न्यूज़पेपर हो गया, ग्रामर रूल्स बेसिक में। नेक्स्ट है जो मैं बता रही हूँ वो डेली करना है कंसिस्टेंटली। फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए। अगर आप फॉलो करें तो अच्छे से करें, अगर आप आधा अधूरा करेंगे तो फिर मार्क्स भी आधे अधूरे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर हो गया, ग्रामर हो गया। हाँ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है ना, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, ऑली बोर्ड के मॉक्स, क्योंकि उससे अच्छा डिफ़िकल्टी लेवल मुझे नहीं मिला। आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई और अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको पता हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं जनरली ऑली बोर्ड के करती थी। और इंग्लिश के लिए मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देती थी अलग से, ताकि मेरे पास पूरा अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का टाइम नहीं है तो इंग्लिश का तो मैं करूँ ही करूँ ज़रूर, 20 मिनट का, ठीक है। तो उसे मैं एनालाइज भी करती थी, ताकि वो मिस्टेक्स मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी। ये हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है, इसी तरह मैं पीयू मेंस के लिए भी मॉक टेस्ट देती थी और उसको एनालाइज करती थी। फिर नेक्स्ट है कि जब आप अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, तो आपको वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आपको 100% एक्यूरेसी मिले, यानी कि जिसमें आप 100% श्योर हो। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि नहीं मुझे इसमें डाउट है, उसको स्किप कर दीजिए। अभी तो मॉक है, अभी आपके पास टाइम है इम्प्रूव करने का। जो गलती करनी है मॉक टेस्ट में कीजिए, एग्जाम में जाके वो गलती नहीं करनी। और जो क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी है या जो भी सीक्वेंस मैं फॉलो करती हूँ मॉक टेस्ट में घर पे प्रैक्टिस के दौरान, मैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ एग्जामिनेशन सेंटर में। अगर मैं चेंज करती हूँ तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करने वाली बात हो गई, रिस्क लेने वाली बात हो गई, उससे मेरा स्कोर भी डाउन जा सकता है। तो जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है, जो फॉलो करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, घर पे पहले कर लीजिए मॉक्स में। एग्जाम सेंटर में जाके कोई भी चेंजेस नहीं कीजिए। ये इंग्लिश के लिए बता रही हूँ, बाकी चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हैं थोड़े बहुत, लाइक मैथ्स और रीजनिंग में कई बार आपकी स्ट्रेटजी सेम काम नहीं आती। और जीके इंग्लिश की ऑलमोस्ट सेम रहती है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश स्ट्रेटजी रिलेटेड का वीडियो। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है। बाकी मैं डिटेल में आपको सब कुछ बता दूंगी कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। और बाकी सारी चीज़ों की वीडियो मैंने आपको नीचे बना के जिनका लिंक मैंने दे ही दिया है, जो वीडियोस मैंने बनाई हैं क्वेश्चन सिलेक्शन की, ठीक है। और डिटेल में भी हम इनकी क्लासेस मैं क्लासेस लेके आऊँगी, आप वो देख सकते हैं इंग्लिश की। तो ये मेरी एक समरी में एक मेरी स्ट्रेटजी थी फॉर इंग्लिश प्री के लिए और मेंस के लिए। सेम स्ट्रेटजी आप क्लर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पीओ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इवन आरबीआई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का लैंग्वेज का सेम रहता है बेसिकली। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रही, बट लैंग्वेज सेक्शन की बात कर रही हूँ। तो मैंने मिस्टेक्स बता दी और अपनी स्ट्रेटजी बता दी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजीज़ हेल्प करेंगे, जिस तरह मेरी हेल्प, मतलब जिस तरह मुझे इनसे हेल्प मिली, मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ, उसी तरह आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। आपका भी स्कोर इम्प्रूव होगा अगर आप अच्छे से इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।